CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 8ویں جماعت کے لیے سمعی درسی کتاب خیال۔ صفحہ نمبر 83 سبق 9 رات اور ریل۔ اس صفحے کے بائیں جانب QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے سبق سے متعلق مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر چلی ہے ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، نیم شب کی خاموشی میں زیر لب گاتی ہوئی، ڈگمگاتی جھومتی سیٹی بجاتی کھیلتی، وادیوں کہسار کی ٹھنڈی ہوا کھاتی ہوئی، تیز جھونکوں میں وہ چھم چھم کا سرود دل نشیں، آندھیوں میں مینا برسنے کی صدا آتی ہوئی، جیسے موجوں کا ترنم، جیسے جل پریوں کے گیت، ایک ایک لے میں ہزاروں زمزمیں گاتی ہوئی۔ اس صفحے کے نیچے ایک ریل گاڑی کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 84 ٹھوکریں کھا کر لچکتی گنگناتی جھومتی، سرخوشی میں گھنگروؤں کی تال پر گاتی ہوئی، ناز سے ہر موڑ پر کھاتی ہوئی سو بیچ و خم، ناز سے ہر موڑ پر کھاتی ہوئی سو پیچ و خم، ایک دلہن اپنی ادا سے آپ شرماتی ہوئی، رات کی تاریکیوں میں جھل ملاتی کانپتی، پٹریوں پر دور تک سیماب چھلکاتی ہوئی، جیسے آدھی رات کو نکلی ہو ایک شاہی بارات، شادیانوں کی صدا سے وجد میں آتی ہوئی، تیز تر ہوتی ہوئی منزل بمنزل دم بدم، رفتہ رفتہ اپنا اصلی روپ دکھلاتی ہوئی۔ یہاں صفحے کے نیچے ایک ریل گاڑی کی تصویر دی گئی ہے۔ سینہ کوہسار پر چڑھتی ہوئی بے اختیار ایک ناگن جس طرح مستی میں لہراتی ہوئی، ایک ستارہ ٹوٹ کر جیسے رواں ہو عرش سے، رفت کوہسار سے میدان میں آتی ہوئی، ایک بگولے کی طرح بڑھتی ہوئی میدان میں، جنگلوں میں آندھیوں کا زور دکھلاتی ہوئی، جستجو میں منزل مقصود کی دیوانہ وار، اپنا سر دھنتی فضا میں بال بکھراتی ہوئی، رینگتی مڑتی مچلتی تل ملاتی ہانپتی، اپنے دل کی آتش پنہاں کو بھڑکاتی ہوئی۔ یہاں صفحے کے نیچے ایک جدید ریل کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 86 پل پہ دریا کے دمادم کوندتی للکارتی، اپنی اس طوفان انگیزی پہ اتراتی ہوئی، پیش کرتی بیچ ندی میں چراغاں کا سماں، ساحلوں پر ریت کے ذروں کو چمکاتی ہوئی، منہ میں گھستی ہے سرنگوں کے یکایک دوڑ کر، دندناتی چیختی چنگھاڑتی گاتی ہوئی، ڈال کر گزرے مناظر پر اندھیرے کا نقاب، ایک نیا منظر نظر کے سامنے لاتی ہوئی، صفحہ دل سے مٹاتی عہدے ماضی کے نقوش، حال و مستقبل کے دلکش خواب دکھلاتی ہوئی۔ اسرار الحق مجاز۔ یہاں صفحے کے نیچے وندے بھارت ریل گاڑی کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 87 لفظ و معنی۔ نیم شب، آدھی رات، زیر لب، لب کے نیچے آہستگی کے ساتھ، کوہسار، پہاڑ، پہاڑی علاقہ، سرود، موسیقی کا ایک آلہ، مینا، بارش، زمزمیں، دھیمے سروں کا راگ، سرخوشی،
सरूर सरमस्ती, पेचो खम, उतार चढ़ाव, सीमाप, पारा, वजद, एक खास कैफियत, हाल, रिफत, उरूज, तरक्की, जुस्तजू, तलाश, आतिशे पिन्हा, छुपी हुई आग। गौर कीजिए, रेल हमारे मुल्क में आमोदरफ्त और माल बर्दारी का एक अहम जरिया है। ये हमारी जिंदगी में शेरक की हैसियत रखती है। असरारुल हक मजाज की नज़्म रात और रेल इस्ताराती और मजाजी पहलुओं से भरपूर है। नज़्म का मरकजी मौजू वक्त की रफ्तार, इंसानी जिंदगी का सफ़र और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। रेल के जरिए जिंदगी की तेज रफ्तारी को अलामती तौर पर पेश किया गया है। ये नज़्म जिस जमाने में लिखी गई थी, उस वक्त भाप या कोयले से चलने वाले इंजन इस्तेमाल होते थे, जिनकी मदद से रेल चलती थी। जमाने ने करवट बदली और जिंदगी के दीगर शोबों की तरह आमोदरफ्त के जराए में भी मुस्बत तब्दीलियां वकू पजीर हुईं। कोयले से डीजल और अब डीजल के अलावा बिजली से चलने वाले इंजन इस्तेमाल होते हैं। सफ़र को आसान बनाने और कम वक्त में लंबे सफ़र के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ी भी चलाई जा रही है, जो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। यहाँ सफ़े के दरमियान में दो रेलगाड़ियों की तस्वीरें हैं। एक रेलगाड़ी जदीद रेलगाड़ी है और दूसरी रेलगाड़ी कदीम भाप के इंजन से चलने वाली गाड़ी है। सफ़ा नंबर 88। सोचिए और बताइए। 1. नज़्म में रेल के सफ़र को जिंदगी के सफ़र से किस तरह तशबीह दी गई है? 2. नज़्म में जिन कुदरती मनाजिर का जिक्र आया है, उन्हें अपने अल्फाज में लिखिए। 3. रेल किस तरह पटरियों पर सीमाब छलकाती है? 4. हालो मुस्तकबिल के दिलकश ख्वाब दिखाने से क्या मुराद है? यहाँ दिए गए अशार की तशरीह अपने अल्फाज में कीजिए। 1. डाल कर गुजरे मनाजिर पर अंधेरे का नकाब, एक नया मंजर नजर के सामने लाती हुई। यहाँ सफ़े के बाईं जानिब एक बच्चे की तस्वीर दी गई है, जिसमें बच्चा एक रेलगाड़ी का तसव्वुर कर रहा है। सफ़ा नंबर 89। 2. पेश करती बीच नदी में चरागा का समा, साहिलों पर रेत के जर्रों को चमकाती हुई। पढ़िए, समझिए और लिखिए। नज़्म में लफ्ज़ रात इस्तेमाल हुआ है। शब, लील वगैरह रात के मुतरादिफात हैं। दर्ज झील अल्फाज के दो मुतरादिफात लिखिए। 1. लब, खाली जगह, खाली जगह। 2. कुहसार, खाली जगह, खाली जगह। 3. मीना, खाली जगह, खाली जगह। 4. सदा, खाली जगह, खाली जगह। 5. दुल्हन, खाली जगह, खाली जगह। 6. पेड़, खाली जगह, खाली जगह। 7. सेहरा, खाली जगह, खाली जगह। 8. जुस्तजू, खाली जगह, खाली जगह। इस शेर पर गौर कीजिए। एक बगुले की तरह बढ़ती हुई मैदान में, जंगलों में आंधियों का जोर दिखलाती हुई। इस शेर में रेल को बगुले की मानिंद बताया गया है। शेर में जब एक चीज को दूसरी चीज की मानिंद बताया जाता है, तो उसे तशबीह कहते हैं। इन दोनों चीजों में किसी न किसी तरह की मुशाबहत जरूरी है। तशबीह में एक चीज को दूसरी चीज जैसी बताने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ऊपर की मिसाल में हर्फ की तरह इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा सी, जैसे, नुमा वगैरह अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको हरूफ तशबीह कहा जाता है। नज़्म को दोबारा पढ़िए और 5 ऐसी मिसालें तलाश कीजिए जिनमें रेल को किसी और लफ्ज़ से
तशबीह दी गई हो। सफ़ा नंबर 90। यहाँ 1 से 5 तक खाली जगह दी गई हैं। यहाँ दिए गए शेर पर गौर कीजिए। जुस्तजू में मंजिले मकसूद की दीवानावार, अपना सर धुनती फिजा में बाल बिखराती हुई। रेल एक बेजान शय है, लेकिन इसके बाल बिखरे हुए हैं, जो इंसानी सिफत है। किसी गैर जानदार चीज या ख्याल को इंसानी खुसूसियत देना या उसे इंसानों की तरह पेश करना तजसीम कहलाता है, यानी बेजान अशिया को जानदार की तरह पेश करना, जैसे रेंगना, हाँपना या मचलना। ये सब जानदार की हरकत हैं, लेकिन इन तमाम औसाफ को रेल जैसी बेजान चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। नज्म से सनते तजसीम की 5 मिसालें तलाश करके लिखिए। यहाँ नीचे 1 से 5 तक खाली जगह दी गई हैं। इस नज्म में सीने कुहसार लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कुहसार का सीना। इसमें हमजा इजाफत का इस्तेमाल किया गया है। आप हमजा इजाफत वाले 5 मुरक्कब अल्फाज तलाश करके लिखिए। यहाँ नीचे 5 खाली जगह दी गई हैं। इस सफ़े पर बाईं जानिब भाप के इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी की तस्वीर दी गई है। सफ़ा नंबर 91। तलाश कीजिए। सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन के बारे में मालूम करके लिखिए और ये भी बताइए कि इनके दरमियान क्या फ़र्क है। टॉय ट्रेन के बारे में अपने साथियों से गुफ्तगू कीजिए और ये मालूम कीजिए कि किन जगहों के लिए चलाई जा रही हैं। यहाँ सफ़े के बाईं जानिब एक पुल पर जाती हुई छोटी टॉय ट्रेन की तस्वीर दी गई है। तख्लीकी इजहार। रेलवे स्टेशन का नज़ारा मौजू पर एक पैराग्राफ लिखिए। दिन में रेल का सफ़र रात में रेल के सफ़र से किस तरह मुख्तलिफ होता है। मेरा रेल का सफ़र उन्वान से सफ़र की रूदाद लिखिए, जिसमें रेल टिकट की बुकिंग से लेकर सफ़र से इख्तिताम तक वाक़यात का जिक्र कीजिए। आमोदरफ्त के मुख्तलिफ ज़राए कौन कौन से हैं, आपको कौन सा ज़रिया ज़्यादा पसंद है, इज़हार ख़याल कीजिए। अमली काम। रेल के टिकट को किन किन तरीक़ों से ख़रीदा जा सकता है, मालूमात हासिल कीजिए। सफ़र पर जाने से क़ब्ल उसकी तैयारी करते हुए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर की फहरिस्त तैयार कीजिए। दिए गए वेब लिंक की मदद से रेल म्यूज़ियम की सैर कीजिए और चंद जुमले उसके बारे में लिखिए। https://nationalmuseumindia.gov.in। सफ़ा नंबर 92। किसी रेलवे स्टेशन का मंजर अपने अल्फाज में बयान कीजिए। आप यहाँ दी गई जगह में रेलवे स्टेशन की तस्वीर बनाकर उसमें अपनी पसंद के रंग भी भर सकते हैं। यहाँ नीचे एक खाली जगह दी गई है। सफ़े के नीचे डीजल से चलने वाली रेलगाड़ी की तस्वीर दी गई है। ये सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। अभी आप सुन रहे थे 8वीं जमात के लिए समयदर्शी किताब ख्याल। साउंड रिकॉर्डिस्ट वीरेंद्र रावत, समई फनकार परवेज गौहर, संपादन डॉक्टर मोहम्मद शमीम खान, हिदायत और तख्लीककार विमलेश चौधरी। ये किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।